Good evening, friends. Regarding order passed by NCLT in future retail matter filed by Bank of India, as everybody is aware, on 20th July, Section 7 petition filed by the Bank of India has been allowed and the insolvency proceeding has been initiated. In addition to that, application filed by Amazon under Section 65 of IBC Code has been rejected, dismissed. Many people are saying the video has to be in Hindi and English, so to save my time, I am making it in a mixed, that is English and Hindi. Occasionally I will use Hindi as well as English in this video to help the investors and creditors. The Section 7 petition and Section 65 application has been disposed by order dated 20th July by way of separate orders. One is of 11 pages and another order is of 34 pages by NCLT Mumbai. As far as the future of future retail is concerned, nobody is clear what is going to happen. Nobody can make a firm statement because, believe me, till the entire process is complete, we cannot comment on these things. Till all the remedies in the law are exercised, we cannot comment on these things. And no public statement, no press release is final in nature as far as the conclusion of this particular matter is concerned. As far as the whole matter is concerned, the whole matter will be again challenged by Amazon or not. We don't know at this point of time. Now let us come quickly on the present status of the matter. बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है और मैसेजेस आ रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गया, हम क्रेडिटर्स, हमने माल सप्लाई किया था, पैसा मिलेगा कि नहीं. इसमें बेशर्मी की बात यह है कि कंपनी की तरफ से कोई भी कंफर्ट किसी को भी नहीं मिला है. सेकंड, ऐसा मीडिया में पब्लिश हुआ है कि फ्यूचर ग्रुप के जो अलग कंपनीज हैं वो खुद ही क्लेम्स फाइल करने वाले अगेंस्ट FRL थ्रू द प्रोसेस. दैट इज फाइन. अभी इसमें एक चीज ऐसा है कि जो लोग इसमें जिम्मेदार है, जिनको आगे आके कंफर्ट देना था क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को, वो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, जैसा कि छोड़ दिया है सब कुछ. अभी ऑर्डर में क्या लिखा है, ऑर्डर क्यों पास हुआ अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल, क्या इसमें पूरा जानकारी है, क्या पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है, क्या पूरा बंद हो गया कंपनी? आंसर इज नो. कंपनी बंद नहीं हुआ है. कंपनी बंद इतना जल्दी नहीं होगा. ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन लोगों को प्रॉपरली नहीं है, इसके लिए हो रहा है. आज सुबह में मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ओ ये पर्टिकुलर स्टॉक डीलिस्ट भी हो गया. इतने हमारे पास पंडित लोग बैठे हैं इंडिया में, सोशल मीडिया फ्री है, जो चाहिए वो लिखो, जो चाहिए पैनिक क्रिएट करो, इसका कोई सुनने वाला नहीं है, रेगुलेटर नहीं है. स्टॉक मार्केट का ही रेगुलेटर सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है मैटर में, तो आईटी का रेगुलेटर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला. ये छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट पे आते हैं. हमारे जो सेबी है, NSE है, इनके पास से मार्च से जो करस्पॉन्डेंस हो रहे उसका कोई जवाब नहीं आया है और इन्होंने कुछ भी शेयर होल्डर्स के सेटिस्फैक्शन में कुछ भी काम अभी तक नहीं किया है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रहा है, कंसर्न मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, ये भगवान ही जानता है. अभी स्ट्रेट अवे NCLT के ऑर्डर पे आ जाते हैं. ऑर्डर पास हुआ है 20th जुलाई 2022. This is the first page of the order. Quorum: Honorable Member Judicial Justice P.N. Deshmukh retired. Honorable Member Technical Shri Shan Babu Gautam. Straight away Section 7 petition बहुत बड़ा है, 11 पेज का ऑर्डर है, उतना मैं टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का. सिर्फ ये सिंगल पैराग्राफ जो पैरा नंबर 7 पेज नंबर 8 और 9 पे स्पिलो हुआ है, इसमें
हाईलाइटेड चीज ही मैं पढ़ देता हूं. Looking at the aforementioned facts, this bench is of the view that the existence of debt and default has been proved. Therefore, we hereby admit the company petition, and also looking at the consent given by the insolvency profession, we hereby appoint Mr. Vijay Kumar V. Iyer as an IRP, that is interim resolution professional, with a direction to the financial creditor to pay remuneration to the IRP and his expenses until the constitution of COC, that is Committee of Creditors. आगे इसमें क्या डायरेक्शंस दिए हैं. पैराग्राफ 8 में, अकॉर्डिंगली दिस पेटिशन, कंपनी पेटिशन इज एडमिटेड विद द फॉलोइंग डायरेक्शंस. द अबव कंपनी पेटिशन इज हियर बाय अलाउड एंड इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान. सब आप एक चीज को समझ लीजिए, initiation of corporate insolvency resolution process is ordered. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब कंपनी बंद करने का नहीं है. कंपनी का जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है फाइनेंशियल, इसको रिजॉल्व कैसा किया जा सकता है, इसमें एबीसी जो भी स्टेप्स है, इसको शुरू करने के लिए एनसीएलटी ने बोला है थ्रू दिस ऑर्डर. सब कुछ खत्म नहीं हुआ है. आप क्रेडिटर है तो आपको 100 रुपये में से 75 रुपीज़ मिलेगा, 50 मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा या 1 रुपया मिलेगा. ये पूरा जो प्रक्रिया है ये जब भी खत्म होगा तभी आपको पता चलेगा. आज के तारीख में भगवान भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि 31 मार्च का जो अकाउंट्स है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बने ही नहीं है, फाइनलाइजेशन ही नहीं हुए. उनके सीएफओ छोड़ के गए, सीईओ छोड़ के गए और कंपनी सेक्रेटरी छोड़ के गए. सो वैसा क्या वैसा पेपर्स पड़े हैं. सो अभी आईआरपी जो मिस्टर विजय कुमार अय्यर अपॉइंट हुए हैं, वो टिपिकल केस में आईआरपी क्या करता है, सब कुछ रेडी अकाउंट्स अगर रहते हैं तो आपका प्रक्रिया शुरू हो जाता है. 180 डेज आपको मिल जाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में और 90 डेज आपको मिल जाते हैं. अभी 270 डेज का ये प्रक्रिया चलेगा मैक्सिमम. ये पूरा प्रोसेस में आईआरपी जब भी कंपनी का कंट्रोल ले लेंगे तो उनको पता चलेगा इसमें क्या क्या सिचुएशंस डेवलप हुए हैं, सीक्वेंस क्या है, कहाँ पे पैसा इनका आया, कहाँ पे पैसा गया. ये सभी चीज़ 1 बाय 1 आईआरपी को पता चलेगा. उनका जो रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स है टाइम टू टाइम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो एनसीएलटी के सामने प्रोड्यूस करेंगे और उनका फाइंडिंग्स भी शेयर करेंगे. अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई मटेरियल नहीं है बोलने के लिए. नेक्स्ट, मिस्टर विजय कुमार वी अय्यर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेजोल्यूशन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कैरी आउट द फंक्शंस एज मेंशन्ड अंडर द आईबीसी कोड. नेक्स्ट, उनको 5 लाख रुपया बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया है कि आप डिपॉजिट करो. दैट दिस बेंच हियर बाय प्रोहिबिट्स. अभी बहुत सारे लोग आप मुझे पूछते हैं आप क्या नया सूट फाइल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को समझना जरूरी है. दैट दिस बेंच हियर बाय प्रोहिबिट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor, that is Future Retail Limited, including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration panel and other authority transferring, encumbering, alienating or disposing of by the corporate debtor any of its assets or any legal right or beneficial interest therein, any action to foreclose, recover, enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property, including any action under securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002, the recovery of any property by any owner or lessor where such property is occupied by or in possession of the corporate debtor. Other orders are there. यहीं पे ये ऑर्डर मैं पढ़ना बंद करता हूँ क्योंकि यही से हमारा अगला
जो प्लान है वो शुरू हो जाता है। आईआरपी क्या करेंगे, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेंगे, इसमें एक अटेम्प्ट मैं करूंगा आप लोगों को समझाने का आगे का प्रक्रिया। जैसा ये ऑर्डर आईआरपी साहब को मिलता है, मिस्टर अय्यर को, इमीडिएटली पब्लिक अनाउंसमेंट इनको करना है सेक्शन 33 के हिसाब से। सेक्शन 33 के हिसाब से पब्लिक एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। जनरली एक 3 डेज का टाइम उनके पास रहता है। उसके बाद ड्यूरिंग द CIRP पीरियड, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विल वेस्ट इन द IRP और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल RP। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। अभी तक क्या होता था, हम लोग मीडिया में कमेंट्स देखते थे, हम लोग भी कमेंट करते थे कि मिस्टर बियानी क्या कर रहे हैं, उनका टीम क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सब चला गया। अभी कंपनी का पूरा जो डायरेक्टर्स है, उनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो IRP के पास आ जाता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो बाद में अपॉइंट होंगे, पूरा प्रोसेस एक स्टेज के बाद उनके पास आ जाएगा। यानी कि कंपनी का सभी डिसीजंस, सभी सिग्नेचर्स ऑन चेक्स, बैलेंस शीट, अलग जो चीज़ें हैं, सब के ऊपर कंट्रोल अभी रहेगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये पर्टिकुलर बात को बहुत समझना ज़रूरी है। अभी आपका एज ए सप्लायर कोई भी रिश्ता फ्यूचर रिटेल के जो पुराने लोग थे उनके साथ नहीं है। IRP जो मिस्टर अय्यर है वही आपका फेस रहेंगे फॉर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इंटरेक्शन। जो भी आपको बात करना है, पूछना है, जानकारी लेना है या देना है, ये सिर्फ मिस्टर अय्यर साहब से ही आपको करना पड़ेगा। कोई भी प्रीवियस एम्प्लॉई डायरेक्टर्स आपके साथ लीगली कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते, उनके बातों में आप मत जाइए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द CIRP period, the management of the corporate debtor will vest in the IRP or RP. The suspended directors and employees of the corporate debtor shall provide all documents in their possession। समझ लीजिए बात को। अभी सबको पता है कि अमेजॉन ने बताया कि 7,000 करोड़ हम लोग दे देंगे थ्रू आवर इन्वेस्टर्स, आप आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दीजिए। तो इन्होंने नहीं दिया, फ्यूचर रिटेल ने। फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बताया कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि बैंकर्स को हमने ड्यू डिलिजेंस कराया है, तो वही आप ले लीजिए, आप बार बार डॉक्यूमेंट्स मत पूछिए। अगर आज के तारीख में कोई इन्वेस्टर आता है, बोलता है कि हमको सेटलमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप बताइए, पेपर्स दे दीजिए, तो IRP मना नहीं कर सकता है। तो पेपर सब कुछ जो डायरेक्टर्स के पास है, सस्पेंडेड एम्प्लॉयज़ के पास है, वो सब चीज़ें अभी IRP के पास आ जाएंगे, उनको देना ही पड़ेगा। कोई भी रेजिस्टेंस ये लोग नहीं दिखा सकते। ये एक पॉजिटिव मोमेंट है। रजिस्ट्री शैल सेंड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द कंसर्न रजिस्टर ऑफ द कंपनीज फॉर अपडेटिंग द मास्टर और कॉर्पोरेट डेटर। उनके जो लीगल प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अभी ये रहा सेक्शन 7 पिटिशन का एक कंप्लीट प्रोसेस। तो अभी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए, आप अगर क्रेडिटर है तो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में मिस्टर अय्यर साहब को आपको आपका क्लेम्स भेजना है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी कैसा भेजना है वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहेगा, या तो आप ईमेल भेज के अय्यर साहब से जानकारी ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आप शेयर होल्डर्स है, आपके पास फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप इसको वॉच कीजिए कैसा ये रेजोल्यूशन प्लान बनता है, कैसा कंपनी का एक प्रोसेस चलता है, इसके बीच में कोई सेटलमेंट होता है कि कोई इसको सेव करता है, वही हिसाब से आपका ट्रेडिंग मार्केट में चलता रहेगा। एक इन्वेस्टर का मुझे मैसेज आया, सर ये डी लिस्ट हो गया क्या? मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको पूरा जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाइए। सोशल मीडिया सिर्फ फ्री है, फुकट में है, इसके लिए कुछ भी अपलोड करना, मैसेज करना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपका मैसेज से किसी का जान भी जा सकता है, किसी को टेंशन भी हो सकता है, किसी के एग्जिस्टिंग स्ट्रेस को
बढ़ावा भी दे सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये पूरा प्रोसेस को फॉलो किया है, अपना इन्वेस्टमेंट भी इस पर लगाया है। इसके लिए कृपा करके अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने जो मित्र हैं उनको बोल सकते हैं कि आपके जो वकील हैं उनसे आप जानकारी ले लीजिए। नेक्स्ट, इसमें अमेज़ॉन का जो एप्लीकेशन था इंटरवेंशन पिटिशन 1/2022, ये पर्टिकुलर मैटर में भी ऑर्डर आ गया है सेक्शन 65 का। ये जो ऑर्डर का जो ऑर्डर है, कंप्लीट जो प्रोसेस में जो ऑर्डर है, ये कंप्लीट डिटेल्ड ऑर्डर है 34 पेजेस का लगभग। सो इसमें आप देख सकते हैं कि वी हियर बाय डिसमिस द प्रेजेंट इंटरवेंशन पिटिशन, पूरा रीजन्ड ऑर्डर इसमें है, तो आप एनसीएलटी के साइट पे जाके देख सकते हैं। सो इन अ नटशल इसमें बहुत सारे प्रक्रिया है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस किसी को नहीं है। अभी इसमें एक एक आप प्रोसेस देखेंगे तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस से पूरा मैटर गुजरेगा। अभी डिक्लेरेशन ऑफ मॉरिटोरियम एंड पब्लिक एडवर्टाइजमेंट आपका छप जाएगा मैक्सिमम 3 दिन जब भी ऑर्डर मिलता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आएंगे। इसमें क्या होगा, जैसा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आना शुरू होगा मिस्टर अय्यर साहब को, उसमें उन्होंने जो भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देना है उसमें कंपाइल करेंगे। IRP will compile the details of claims received from all the creditors and that information will be submitted to National Company Law Tribunal। इसमें आपका मैक्सिमम पीरियड जो है वो एडवर्टाइजमेंट मेंशन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको गलती से अगर एडवर्टाइजमेंट आपने ध्यान नहीं दिया या तो कोई पर्सनल काम के लिए आप बिजी थे, आपको क्लेम आपको फाइल करने को नहीं हुआ, तो भी आप IRP साहब को अपना क्लेम भेज सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होने तक भी आप भेज सकते हैं, लेकिन जितना विद इन लिमिटेशन आप भेजेंगे उनको वेरीफाई, आपका क्लेम्स वेरीफाई करने में आसानी से होगा। इसमें क्या होता है, अगर आपने इनको कोई माल सप्लाई किया है, वो सप्लाई जो प्रोडक्ट आपने फ्यूचर ग्रुप बिग बाज़ार को आपने किया है, पूरा उनका बिग बाज़ार के अकाउंट्स में अगर लेजर में रिफ्लेक्ट करता है तो आपका क्लेम एडमिट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पैसा मिलेगा, क्लेम एडमिट होगा। उनके रिकॉर्ड्स में अगर रिफ्लेक्ट करता है तो ये क्लेम को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने IRP रखेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये जो IRP साहब ये काम करेंगे वो इंटरिम है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इन्हीं को अगर अपॉइंट कर सकते हैं या तो नया भी प्रोफेशनल आ सकते हैं। उसके बाद पूरा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल होगा NCLT में। उसके बाद अगर रेजोल्यूशन प्लान अगर कुछ बनता है तो रेजोल्यूशन प्लान NCLT में प्लेस होगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के थ्रू RP। उसके बाद अगर कुछ ऐसा लगता है कि कंपनी को बचाया जा सकता है, या तो कोई खरीदना चाहता है, कोई स्टेक बढ़ाना चाहता है, कोई मदद करना चाहता है, इसके बाद क्या क्या होगा वो तो आपको अराउंड 180 डेज से और 270 डेज मैक्सिमम है, तब तक ही पता चलेगा। बीच में कोई भी कुछ भी बोलेगा, आप इन्फॉर्म डिसीजन ले लीजिए कृपा करके। और अननेसेसरली इसमें स्पेकुलेट करना, ये होगा वो होगा, उसके ऊपर बिल्कुल आप विश्वास मत कीजिए। स्ट्रेसफुल डेज डेफिनेटली है, लेकिन इसको अगर थोड़ा हम लोग डाइल्यूट करके समझना है तो एक समझ लीजिए, फ्यूचर रिटेल जिस दिन से रिलायंस ने इनका स्टोर्स लिया है, राइट रॉन्ग कोर्ट्स डिसाइड करेगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड, उसके बाद आज तक कंपनी के तरफ से कुछ भी अपडेट्स नहीं है। NCLT में मैटर चलता रहा, इसके वजह से कोई बिडिंग नहीं हुआ, कोई सामने आया नहीं, सेटलमेंट नहीं हुआ। ये पूरा प्रक्रिया में जो बैंक्स ने जो अपना काम किया है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह 100% लगता है। रिजर्व बैंक का कंप्लीट फेल्यूर है, इसमें प्रॉपर स्टेप्स लिया नहीं है। सेबी का कंप्लीट फेल्यूर है, इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेना चाहिए था। इसमें ऐसा नहीं कि कोई चोरी छुपी काम हुआ है। सब कुछ मैंने खुद ईमेल भेजा है सभी चेयरपर्सन्स को, रिजर्व बैंक को, बिल्कुल ही इन्होंने इस पे
इन्वेस्टर्स को थोड़ा भी कंफर्ट मिले ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। ये पूरा एक डिज़ाइन है जहाँ पे एनसीएलटी में ये मैटर एडमिट होगा तो हमारा टेबल साफ हो जाएगा, हम आपको ऑर्डर दिखा देंगे, भाई देखो ये तो एडमिट हो गया तो हम सबका कल्याण हो रहा है, 1 साल तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप निकल जाओ, आपको हम लोग जवाब भी नहीं देंगे। सो ये पूरा प्रोसेस ये कैसा एंड होगा अभी कोई बता नहीं सकता है। इसकी वजह से माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी इन्वेस्टर, एवरी क्रेडिटर इज गो विद द फ्लो। देयर इज नो पॉइंट इन just getting panic. The law has prescribed proper procedures, proper steps, proper limitation for every activity. In this case, it is an exceptional case because there is an allegation of fraud, allegation of transfer of funds to the group companies, allegations on the independent directors by Amazon to ensure that certain things were not, correct. They failed to ensure. These are the allegations. Whether Amazon will go and appeal before NCLAT, we have to wait and watch. We cannot comment. Whether NCLT will agitate till Supreme Court this matter, whether the SIAC will stall the arbitration proceedings or not, all these things cannot be answered now. So I am 100% confident if there is a substance in Amazon's claim with regard to the fraud and all that, we are ready to wait. Some people ask me whether you have sold any shares. I have not sold a single share. Let the investor suffer, let the investor succeed. They are all different things. But in this particular matter, what is important is, in this country, if you are coming as an international investor, foreign investor, how you are treated, whether it is fair or unfair, this is the question mark. If you are securing your investments through the arbitral tribunal, Singapore tribunal, whether you are safe or not, if you are having an injunction order, whether this particular case is going to become a standard case that in spite of having an injunction order from the international tribunal, that is SIAC, whether still it can be breached, still it can be overlooked into still it can be bypassed through the secured lenders option, yes or no. So this is the whole matter which is going to give complete new outlook on this entire process of Future Retail Limited relating to the resolution professionals process, and also the fate of this company is not that great, not very weak also, because the international investors are looking into this matter. I am personally feeling that Amazon and Reliance and Future Retail, including the government of India, SEBI, NSE, they could have resolved this matter, but they have failed to look into it. Everybody was contesting for their personal egos. They thought Future Retail has been consistently making a claim. If this particular matter goes to litigation, if it prolongs, the matter will be referred to NCLT. So there was no visible attempt from Future Retail to look for alternate vendors, alternate parties other than Reliance. And now there are media reports about 6,000 crore rupees Reliance may claim against Future Retail. So once the interim resolution professional completes his compilation of the claims received during this limitation period, or even beyond that till the conclusion of the resolution professionals, resolution process, we cannot comment what is going to happen. Whether suspension of trading will happen, whether the delisting will happen, these things cannot be commented at this point of time. I am only requesting all the investors and stakeholders and the creditors, please go with the flow. The matter is still not over. The company is still alive. There is a potential in the company. How and who is going to recognize the potential in the company? How anybody injects some vitamin M, that is money, into this particular company? Because even today in the retail investors, retail purchasers, in the Kirana segment, Big Bazaar is still having good name. All these litigations, all these messy things which have been
reported in the media for past 2 years are within the knowledge of people who are directly affected. There are so many large corporates in India, they can think over it, including Reliance, try to save this company. Otherwise, as an investor, I am losing interest in SEBI and all the regulators. I am coming to a conclusion that if big people are behind this kind of messy transactions, SEBI, Reserve Bank, any investigation agencies cannot protect the interest of small investors. Therefore, please prove that you are still effective, you can still do great job and save the transaction. Thank you very much and take care.